ઓકે, તો હું વધારે સમય નહીં લેતા આપણે એમને ઇન્વાઇટ જ કરશું. તો અમે સુરત વાળાએ ઝૂમ મિટિંગમાં તાલી રાખી છે. અમને તાલી કહેવાય. શું કહેવાય? કારણ કે અવાજ તો નથી આવવાનો, પણ આપણે બધા જ જો આપણો પોતાનો કેમેરો ચાલુ રાખીએ અને આપણે જો સ્પેશિયલી દિનેશભાઈ હિરાણી માટે તાલી વગાડીએ તો અમને ઉત્સાહ વધી જશે. અમારી મિટિંગમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પણ કોઈ સારું સ્પીચ આપે, સારી કોઈ વાતચીત કરે, સારું કોઈ સમાચાર આપે, તો ઓટોમેટિકલી, અને વધારે સારું લાગે તો તમે બે હાથે પણ તાલી પાડી શકો છો. અને આમને કહેવાય છે મૂવ યોર બોડી. જો ઝોલું આવે ને તો તમારે હલાવી દેવાનું, એટલે શું થશે? ઓટોમેટિકલી તમે પાછું જાગૃત અવસ્થામાં આવી જશો. રાઈટ? તો હું વધારે સમય નહીં લેતા, હું એમને મેક એ હોસ્ટ કરીશ અને એમને પહેલા તો આસ્ક ટુ અનમ્યુટ. હેલો. યસ દિનેશભાઈ. આવ્યો અવાજ આવ્યો? યસ યસ સર. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. થેન્ક યુ તેજસભાઈ અને આવેલા સર્વે આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વેસ્ટિજિયન ને. ગુજરાતીમાં જ ને તેજસભાઈ? યસ, ગુજરાતી. ઓકે ઓકે. આપણે જે સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ અત્યાર સુધી, મારું પર પરિચય આપ્યો તેજસભાઈ આપ્યો. બાય પ્રોફેશન હું ગવર્મેન્ટ ટીચર છું અને સાયકોલોજી મારો સબ્જેક્ટ છે. 11th 12th માં ભણાવું છું. સાથે સાથે ઘણા બધા બિઝનેસ બીજા છે. ઇન્સ્યુરન્સ નું મોટું ફિલ્ડ છે. થોડો અવાજ ઓછો આવી રહ્યો છે. નજીક અથવા તો કંઈક એક્ટિવિટી, કંઈક અવાજ વધારી શકો તો. હેલો. હા બોલો. આવ્યો? યસ સર, બોલો કન્ટિન્યુ. કે મારો ઇન્સ્યુરન્સ નું ફિલ્ડ પણ મોટું છે. પૈસા તો બીજી જગ્યાએ કમાઈ શકતા હતા, પણ હું જેના કારણે બિઝનેસમાં આવ્યો છું એને પકડી રાખ્યો છે. એગ્રીની પ્રોડક્ટ ઉપરથી જ આ મને રિલેટ કરી ગઈ કે આ પ્રોડક્ટ અગાઉ કામ કરતા હતા બીજી કંપનીમાં, પણ આ પ્રોડક્ટ મને રિલેટ કરી ગઈ. એના ઉપરથી મેં એનું નોલેજ લીધું અને ખેડૂતને ફાયદો થાય એ હિસાબે જ હું આ બિઝનેસમાં આવેલો. એનાથી કન્ટિન્યુટી છે. ખેડૂતને કેમ ફાયદો થાય એના વિશે નોલેજ લીધું અને ખેડૂતને બચાવશું. અને મેં અભિયાન લીધું છે કે ખેડૂતોને જેમ બને તેમ ફાયદો કરાવો અને ખેડૂતને બચાવો. ખેડૂતને બચવાની સાથે એન્વાયરમેન્ટ બચશે, આપણે બિઝનેસ વધશે, ખેડૂતને આપણે દુઆ મળશે અને એના કારણે આપણે પ્રકૃતિનું પણ આપણે મોટું કામ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે જે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ એટલે ઘણી વખત અત્યારે આપણે ખબર નહીં પડે. ફિલ્ડમાં જયારે હું જતો શરૂઆતમાં ત્યારે મને એવું નતું લાગતું કે ખેડૂતોને આટલું બધું મને હું કામ અને મદદરૂપ થઈ રહ્યો છું, પણ એ બધું ફિલિંગ હવે ખબર પડે છે. એની લાગણી ઉપરથી, એનું કામ ઉપરથી, એના વાડીમાં કે એના ખેતરમાં જાય ત્યારે ત્યાંથી નીકળીને ત્યારે ફિલિંગ થાય અને ખેડૂતો રાજી થાય કે આ વસ્તુ તમે આપી, સારી વસ્તુ આપી. એટલે આપણે અત્યારે કોઈ પણ ખેડૂત પાસે આપણે જઈએ છીએ તો આપણે એને બચાવવા માટે જઈએ છીએ, આપણા બિઝનેસ માટે નથી જતા. એવું મનમાં અત્યારે ગાંઠ બાંધી જવું. કઈ રીતે ખેડૂત પાસે જવું, ખેડૂત આપણે કઈ રીતે રિલેટ કરે, એની આપણે પ્રોસેસ થી શરૂઆત કરશું. પહેલો જ પોઈન્ટ છે કે જ્યારે પણ આપણે ખેડૂત પાસે જશું ત્યારે ટાઈ સૂટમાં કે ડ્રેસ કોડમાં જવાનું નથી. બી મસ્ટ. કેમ કે એનું કારણ તમને ઘણું મને અનુભવ થયેલા છે, મને ખબર છે. હું તો પહેલેથી મને ખબર હતી છતાં ખેડૂતોના વ્યૂ લીધા છે કે જેવો તમે ટાઈ સૂટમાં કે બેગ લઈને જાઓ છો તો એ એમ સમજે છે કે આ સેલ્સમેન કે દવા વેચવા આવે છે. તો આપણે પેલું તો ડ્રેસ કોડ આપણો નોર્મલ ડ્રેસ કોડ હોય, નોર્મલ કપડા પહેરતા હોય એ રીતે જવાનું છે. બીજું, સીધા કોઈના ખેતરમાં ઘૂસવાનું નથી. એને એપોઇન્ટમેન્ટ તમારા રિલેટિવ હોય તો એનો પેલો એપોઇન્ટમેન્ટ લો. સિસ્ટમ આપણા બિઝનેસ ની છે, એના એપોઇન્ટમેન્ટ ના કહી શકાય ખેડૂતને કે તમારી વાડીએ મારે ફરવા આવવું છે કે જોવા આવવું છે, તો તમે ક્યારે વાડી હશો? આ એપોઇન્ટમેન્ટ ખેડૂત ની કહું છું. તો ખેડૂત શું ના નહીં પાડે તો આવો તમે ગમે ત્યારે, ક્યારે તમે ફ્રી હશો. તો એપોઇન્ટમેન્ટ લીધા પછી આપણે એની ખેતરમાં કોઈ પણ આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે, બિઝનેસ નો પ્લાન બતાવો, ઓફિસમાં બતાવો, ઘરમાં બતાવો, પણ આનો પ્લાન એગ્રીનો તમારે આપણે ફિલ્ડમાં જવું પડશે. અને ફિલ્ડમાં ગયા પછી ત્યાં તમે આને પ્લાન બતાવો અને કોઈને તમે ઘરે બતાવો, બેમાં હાથી ઘોડાનો ડિફરન્ટ આવે છે. એટલે ખેતર સિવાય, વાડી સિવાય, એના ફાર્મ સિવાય આ પ્રોજેક્ટ બતાવવાનું નથી. આપણો એગ્રીની વાત કરું છું. તો
તો ખેડૂત પાસે જાય છે આપણે પેલું જ કામ કર્યું, આપણે પોઈન્ટ નોંધ્યો તમે કે આપણો ડ્રેસ કોડ. બીજું, ફિલ્ડમાં તમે જાઓ છો, ખેડૂતને સાંભળવાનો છે, એને 5 થી 7 એવા ક્વેશ્ચન પૂછો. એ હું તમને કહું છું. તમે માની લો કે તેજસભાઈ છે, ખેડૂત છે. તેજસભાઈ વાંધો નથી ને? યસ સોની છું, પણ આજે ખેડૂત બની જઈશ. કઈ વાંધો નહીં. તેજસભાઈ ના મારા થોડા ઓળખીતા છે, મિત્ર છે. હું એને કહું છું કે તેજસભાઈ, તમારી વાડીમાં શું વાવ્યું છે અત્યારે? બહુ વાતાવરણ સારું છે, શું વાવ્યું છે? તેજસભાઈ છે કે કપાસ વાવ્યું છે, કે એરંડા વાવ્યું છે, કે ઘઉં વાવે છે, કઈ ફિલ્ડમાં કહેશે. ઓકે, તમારી વાડી મને બહુ ગમે છે, મને વાડીઓ તો મને જોવા આવું છે. તો તેજસભાઈ ના નથી પડવાના, એમ જ કહેશે આવો, ક્યારે આવો છો? તો તાત્કાલિક નહીં જાઓ. આજે કીધું ને આજે જાઓ નહીં, કાલે અથવા પરમદી આવું તો કેમ રહેશે તમને? એના પાછળ બધું મોટું લોજિક છે. શું કામ આપણે તાત્કાલિક ન જવું? એ આપણે બધાને બિઝનેસમાં પણ ખબર છે. તમે નેક્સ્ટ ડે ની વાડીમાં ટાઈમ લઈ લીધો છે, ફોન કરો, તમે વાડીએ છો તો આવો, જાઓ, પેલા ખેતરમાં ફરો, પૂછો. પેલો સવાલ, તમારી વાડી સરસ છે, સારું છે. પછી પાકને પૂછો, પાક વાવ્યો છે, ખેડૂત બધી માહિતી દેશે. માહિતી એકત્રિત કરો, સાંભળો બધું. અમારે ત્યાં કચ્છની અંદર અત્યારે જોઈએ તો બગાયતી બહુ, દાડમ, કેળા, પપૈયા, બગાયતી છે. બગાયતી વિશે પૂછીએ છીએ તો તમે જે પણ એની ખેતીમાં પાક છે એને પૂછો, એની માહિતી લો. કયું ખાતર નાખો છો, કેટલે સુધી નાખો છો, કે આપણે નોલેજ થોડુંક હોવું જોઈએ કે ડીએપી, યુરિયા કેટલું નાખવું. એ ખેડૂતો એના પાસે બોલાવડાવવાનું, આપણે કહેવાનું નહીં કશું. ખબર હોય તો પણ એને પૂછો, તમે કયું ખાતર વાપરો છો, કયું બિયારણ વાપરો છો, કેટલું ઉત્પાદન થાય છે, કેટલો ખર્ચ થાય છે. મેં આપણા ગ્રુપની અંદર મોકલેલું હતું ખેડૂતોનું આખું એકાઉન્ટ, કેટલો ખર્ચ અને કેટલું ઉત્પાદન. છતાં પણ હું રિપીટ તમને હમણાં મોકલી દઈશ. તેજસભાઈ ગ્રુપમાં મોકલી દેશે કે એ બતાવો ખેડૂતો. એ જોવાનું આપણે કેવો ખેડૂત છે. એજ્યુકેટેડ ખેડૂતો છે તો તમે એક્સેપ્ટ કરશે. તમે ખેડૂત પાસે ગયા, એની માહિતી લીધી, એકત્રિત કરી, બધું સાંભળ્યા. એને સાંભળી લીધા પછી આપણે શું કહેવાનું, 7 વખત તમે યસ કહો ને, તો 8મી વાળી સામેથી યસ કહેશે. તમે એની વાત સાંભળી, બધું વાત કરી. જયારે પણ એનો દુખતી નસ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, એ આપણે પકડતા આવડવું જોઈએ. કયો પ્રોબ્લેમ આવશે કહેશે, તમે કયું ખાતર નાખો, યુરિયા, ડીએપી કેટલું નાખો છો? કોઈ કહેશે 50 કિલો, કોઈ કહેશે 100 કિલો એકરે. અમારે એકર તમારે ત્યાં વીઘા ચાલતા હશે તો વીઘા પ્રમાણે. તો તમને એ બધા ખેડૂતોને ખબર છે કે યુરિયા અને ડીએપી અને પેસ્ટિસાઇડ ખતરનાક વસ્તુ છે, પણ એની પાસે વિકલ્પ નથી. ત્યારે આપણે પકડી લેવાનું છે કે સાહેબ તમે યુરિયા, ડીએપી પ્રમાણ ઓછું વાપરીએ અને ઉત્પાદન તમારું વધે, જમીન બચે, પ્રકૃતિ સુધરે અને આપણે બધા સુધરીએ, એવી વસ્તુ તમને મળે તો કે શું છે બતાવો. તો ત્યારે આપણી પ્રોડક્ટની માહિતી ત્યારે આપવાની છે. ઘણી વખત મોટા આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું ભૂલ કરે છે કે પહેલી શરૂઆતમાં હું પણ એવું કરતો, તો આપણે હવે શીખી લેવાનું. એની પાસે પ્રોડક્ટની વાત સીધી કરવાની નથી, પ્રોડક્ટ લઈને પણ જવાની નથી. લક્ષ્મણભાઈ મારી ભેગા છે, એ ઘણી વખત મારી જોડે ફિલ્ડમાં હાલે છે. કેવી રીતે વાત કરી અને પછી જયારે વાત કરી ત્યારે શું કરવાનું છે એ આપણે એન્ડ કરશું. ત્યારે એન્ડ કઈ રીતે કરવાનું છે, ખેડૂત પાસે ગયા પછી એની માહિતી આપવાની છે, આનું શું કામ છે, એનું આપણું પ્રોપર નોલેજ હશે. હું આ બે વસ્તુ બતાવતો નથી, એગ્રી એટીટ્યુડ ની વાત કરું છું. સમજી ગયા છો તેજસભાઈ શું બતાવવાનું હોય છે? યસ. 5 લીટર જ બતાવવાની. આ બતાવશો તો આ લેશે. ખેડૂતની મેન્ટાલિટી, આ બતાવશો તો આ દેશે. આ બતાવવાની જ નહીં. ડેમોમાં પણ આ બતાવવાની, ડેમો કરવો હોય તો આ તો બતાવવાની જ નહીં. મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે આમાં. એક ખેડૂતને મેં બતાવી હતી, હવે કાયમ મને આ જ લે છે. એ હેબિટ પડી ગયા, સસ્તી પડે, સવડી પડે છે, કાઢવી અવડી પડે. 5 લીટર બતાવો જોશે, અને આ તો સ્પ્રેમાં કામ લાગશે. બાકી પાણીની સાથે દોડવાથી ઘણું બધું ફાયદો થશે. હવે તો આ પ્રોડક્ટની માહિતી આપણી પાસે છે, તમારી પાસે નોલેજ લીધું છે ખેડૂત પાસે. અને કોઈ પણ ખેડૂત છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, એ પ્રોડક્ટ જોઈને નહીં લે. તમારો કોન્ફિડન્સ, તમારો વિશ્વાસ, તમારા રિલેશન, કઈ રીતે તમે એને વાત કરો છો, કઈ રીતે આપો છો, એના ઉપર લઈ લેશો. અને ચોખ્ખી વસ્તુ કે તમને માલ અમે વસ્તુ બતાવવા આવ્યા છીએ, આ સિસ્ટમ બતાવવા આવ્યા છીએ, તમને માલ વેચવા નથી આવ્યા. તમે લ્યો કે ના લો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અને સ્ટાર્ટિંગ બેઝ ઉપર તમે શું કહો, તમે એક નવી વ્યક્તિ જોડે તમે મળવા જાઓ તો શું કરવું જોઈએ? એક કહેવાનું ભૂલી ગયો, ફરી કહી દઉં કે અમે એક ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ, ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ પ્રોજેક્ટ લઈને નીકળ્યા છીએ. તો એના વિશે તમને ખાલી માહિતી આપવી છે, તો કોઈ ખેડૂત ના નહીં પડે. અને એને આપ્યા માહિતી અને આપ્યા પછી એક બે જ પ્રોડક્ટ બતાવવાની છે. કઈ બે પ્રોડક્ટ છે આપણી?
એક એગ્રી 82 ને હુમિક બધા ખેડૂતો વાપરે છે. અમારે ત્યાં તો નામથી બોલાવે છે, નામથી માંગે છે કે વેસ્ટેજ ની એગ્રી દો અને વેસ્ટેજ ની હુમિક દો. બાકીની બધી છે એ બધી એમને એમાં આવશે. તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ગાય લે, ગાય એક્ઝામ્પલ તરીકે ગાય લે તો વાછરડાના પૈસા ચૂકવવા પડે? ના ચૂકવવા પડે, આવે જ. જેમ આપણા બિઝનેસમાં છે કે પૈસા તમારે કમાવા છે, પૈસા તો બાય પ્રોડક્ટ થઈ જશે, બીજું બધું ઘણું બધું મળશે. એમ ખેડૂતને આના બતાવવાનું છે રિઝલ્ટ ઓટોમેટિક, બાકીની પ્રોડક્ટો ઓટોમેટિક જશે. શરૂઆતમાં મારી 2 પ્રોડક્ટ જતી હતી, અત્યારે બધી પ્રોડક્ટો જાય છે. કઈ રીતે યુઝ કરવી એનો નોલેજ આપણે લેતા જશું તો ધીમે ધીમે એની વસ્તુ આવશે. હુમિક આપણી ટોટલ 7 પ્રોડક્ટો છે, 7 પ્રોડક્ટ નું નોલેજ લીધું, ખેડૂતને સમજાવ્યા પછી હવે એન્ડ કઈ રીતે કરવાનો છે બધી માહિતી આપ્યા પછી ખેડૂતને આપણે માહિતી બધી આપી દીધી. ત્યાર પછી એ ખેડૂત શું કહેશે તો આને વચ્ચે શું, તો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? 5 લીટર એક પ્રોડક્ટ મૂકી દઉં છું જેવો ખેડૂત, 3 લીટર હુમિક મૂકી દઉં છું, અથવા જે મોટો ખેડૂત તો 10 લીટર હુમિક મૂકી દઉં છું. એ હુમિક મૂક્યા પછી અને તરત કેલ્ક્યુલેટર કાઢવાનું, આ નવી સિસ્ટમ પૈસા કઢાવવાની. એને કહેવાની જરૂર નથી, પોતે બોલે નહીં, તમે ભેગું રાખી દીધું સામે, કેલ્ક્યુલેટર કાઢવાનું રાખવાનું ભેગું, ભલે યુઝ કરીને મોબાઈલ નહીં, કેલ્ક્યુલેટર રાખવા તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે પોતે ભલે કઈ હિસાબ નથી કરવાનો, તમને એને બતાવવાની ખબર પડી ગઈ, હિસાબ તરત પૂછે કેટલા રૂપિયા થયા, આટલા રૂપિયા. તો ઓન ધી સ્પોટ કેશ પૈસા. ઉધારમાં માલ ધંધો નથી કરતા. એ 10,000 નો હોય કે 25,000 નો. મારો હમણાં એક વીક પહેલા નેક્સ્ટ મંથમાં લાસ્ટ મંથમાં રસ્તામાં જતો તો લક્ષ્મણભાઈ હતા, મને ફોન કર્યો કે ઓફિસ આવો છું, મેં આવું છું. 10 મિનિટ રસ્તામાં એક ભાઈ મળ્યા મને, 10 મિનિટ લક્ષ્મણભાઈ કીધું મોડું થશે. યસ, એક બે રિક્વેસ્ટ છે, હિન્દીમાં વાતચીત કરી શકશો? 100% કરી શકું સાહેબ. ડન છે, ડન છે. કારણ કે એમાં એવું છે કે ઘણા લોકો અધર સ્ટેટ થી છે, તો એમને રિક્વેસ્ટ છે કે હિન્દીમાં. વાંધો નહીં, સરસ. યસ, ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ ना, कोई बात नहीं. हाँ तो आए होंगे होशियार भैया ने, वो आए होंगे, मेरे को मालूम है, कोई बात नहीं. तो हिंदी में ओके ओके ओके. तो उसके पास पहले क्या करना है, कैलकुलेशन करवा के उसको कैलकुलेटर लगा के दिखाना है, तो तुरंत वो कैश देगा. वो बात कर रहे थे लक्ष्मण भाई की बात, उसमें मैंने 10 मिनट लेट हुआ तो मैं रास्ते में खड़ा था. उसके बात हुई, मैंने पूछा भैया क्या हुआ, पपीता उसने प्लांट लगाए थे तो लूज हो गया थोड़ा. उसने बोला क्या हुआ, मैंने पूछा क्या हुआ, पपीता जो बारिश में गिर गया, अभी उसका कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा, क्या करे. मैं तो आपकी हमारी प्रोडक्ट पड़ी है नहीं है, वो तो नहीं है, खत्म हो गई. मैं कल भेज दूं, कितनी भेज दूं, कितनी भेज दूं नहीं बोला मैंने, उसने बोला भेज दो. मैं 30 लीटर भेज दूं, तो ऐसा कर 30 को नहीं है तो मैं 40 लीटर भेज देता हूँ. 40 लीटर उसने बोला, मैंने 50 लीटर भेज दिया. मेरे को मालूम था कि उसका यूज है, यूज करेगा. 10 मिनट का मैं क्लोजिंग किया. वो 10 मिनट का क्लोजिंग कैसे हुआ, मैं चला जाता, उसके बाद हुई. पहले से उसको रिजल्ट दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटर भी था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था. उसने एक ही मिनट में 55 लीटर उसको दे दिया. तो कहने का मतलब क्या है, आप उसका नॉलेज हो, उसको पहले आपको रिजल्ट फील्ड करना पड़ेगा. अब फील्ड कैसे करने का, मैं प्रोडक्ट की बात करी, डिटेल में एक एक प्रोडक्ट की बात हम नहीं कर सकते हैं. इसका यूज कैसे करते हैं वो आप कभी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जितना समय मिलेगा इसमें हम करेंगे. लेकिन उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको कैसे, उसको बेनिफिट हो रहा है, फार्मर को कैसे बेनिफिट, हमारा एटीट्यूड कैसे रखना है कि मैं अभी जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करके निकलना है कि भगवान ये फार्मर को सद्बुद्धि आ जावे, उसका फायदा हो जाए, हमारी प्रोडक्ट बिक जाए, वो नहीं. ऐसा एटीट्यूड हमारे भाई से भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है. उसको समझना है कि उसको प्रोडक्ट यूज करेगा, उसके फार्म बच जाएगा, उसको फायदा हो जाएगा. और दूसरी बात क्या है कि फार्मर को कैलकुलेशन अपन को कर देना पड़ेगा, वो उसको मालूम नहीं पड़ेगा. हर सब डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, करना तो कर सकते हो. आप एग्रो वाले के पास ज्यादा टाइम खराब मत करना, वो नहीं करेगा, नहीं करने देगा. मेरे गांव, मेरे पास में यहाँ भुज से 15 किलोमीटर दूर नारायणपुर गांव है, वो मैं एग्रो वाला के पास गया था, उसने समझाया इतना बेनिफिट है, इतना फार्मर को फायदा हो रहा है. वो ने मना कर दिया, कहीं नहीं लिया, कोई बात नहीं. मैंने क्या किया,
मैं फार्मर के पास चला गया, उसको यूज करवाया, उसको रिजल्ट दे दिया, उसको भेजा वही दुकान वाले के पास। मैं उसको ये बुक भेज रख के आया था उसके पास, ये प्रोडक्ट भी रख के आया था सैंपल के लिए, पैसा लिया था ऐसे सैंपल के नहीं। बाद में 5 फार्मर को उसको उसके पास भेजा कि भैया ये प्रोडक्ट चाहिए, एमआरपी पे लेके आओ, मैं ले लूंगा। कि 5 आदमी उसके फार्मर उसके पास गए, तो उसने सोच में पड़ गया कि यार ये प्रोडक्ट क्या है। उसने मेरे को कॉल किया, ये भैया तो या ये प्रोडक्ट चाहिए तो कितने में चाहिए मिलेगा। मैं भी ये तेरे को पहले बोला था मैंने, उन्होंने नहीं समझा। लेकिन बहुत मेरा रिलेशन वाला था इसलिए, वरना आप उसके पास एग्रो वाला के पास टाइम मत खराब करो। इसके अच्छा है कि आप फार्मर के पास चले जाओ। अपन को फार्मर को बेस्ट बनाना है। हम अपन क्या सोचते हैं, फार्मर में हम क्या सोचते हैं कि एग्रो वाला के पास जाएंगे ज्यादा बिक जाएगा, लेकिन एग्रो वाला है ना खतरनाक चीज है। कोई होए तो मैं माफ करना, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको किसका ईगो हट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फार्मर के पास सीधा आ जाओ, एग्रो वाला नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? दूसरी प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट में उसने 70 से 80% उसको बेनिफिट मिल रहा है। अपन में 50% के 60% मिल रहा है, वो नहीं दिखेगा नहीं। और वो क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट नहीं दे रहा। मान लो कि हुमिक है, उसके पास एक प्रोडक्ट नहीं होगी हुमिक की, हुमिक इसकी 5 से 7 प्रकार की उसके पास होगी। वो जो जैसा बोलेगा फार्मर वो दे देगा, सस्ता वाला बोलेगा सस्ता वाला दे देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? हमारी एक ही हुमिक चल रही है, क्यों? रिजल्ट है। और आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, फार्मर के पास जाओगे, बाद में बात करते हैं। तो हम एग्रो वाला के पास टाइम बर्बाद मत करें, डायरेक्ट फार्मर में चले जाए। और फार्मर के पास जाने के बाद क्या करना है उसको मैंने बता दिया, वैसे बात की। और नए फार्मर के पास जाना है तो अपन को क्या करना है, डेमो करना है। डेमो कितना, उसको देना नहीं है कुछ। मान लो के आपके पास पहले तो सब जो इंटरेस्टेड है इसमें, एग्री प्रोडक्ट में जो इंटरेस्टेड है तेजस भाई, उसको एक किट बनानी पड़ेगी पहली। ओके। किट में क्या होगी, एक एग्री 82, एग्री हुमिक और एग्री गोल्ड, 3 आपकी किट में तो होनी चाहिए। 3 चीजें आपके, ये प्रोडक्ट तो सब होने चाहिए, लेकिन ये किट में क्या करना है, आप किट लेके जाओ रहे हो, जिसके पास आप फार्मर के पास जा रहे हो, उसको डेमो देना है। डेमो कैसे देना है, उसके 15 लीटर का पंप लेना है, उसको बुलाना है कि भाई 15 लीटर पंप लेके आओ, उसमें 10 ml डालना है एग्री 82, 30 ml डालना है हुमिक एसिड और 10 ग्राम डालना है गोल्ड। 3 डाल के उसको हिलाकर, उसको जितने में 15 लीटर पंप चलता है उसमें उसको स्प्रे करवा दो। और बाद में पूरे में नहीं डालना है, पूरे में 15 लीटर थोड़ा होगा, तो थोड़े में लग जाएगा। और 3 दिन के बाद आप उसका फोन नंबर दे के आना। 3 दिन के बाद फार्मर का फोन आएगा, भैया आपने क्या डाला है, इतना कितना डिफरेंट है। बाद में उसके ऊपर प्रत्यक्ष खुद ही कर लेगा ये। लेकिन ये करने को उसको देना नहीं है, आप देख के मत आओ। वो क्या करेगा, फ्री में मिलेगा ना, एक के नहीं देने का है। 15 लीटर पंप में डाल के उसको स्प्रे करवा के बाद में चले जाना है। 4 आदमी के पास आप रोज के जाते हो, मान लो 4 आदमी के पास, 4 फार्मर के पास, कितना आधा घंटा 1 घंटा लगता है। मैं संडे को ज्यादा जाता हूँ, मेरी जॉब है, दूसरा काम कर रहा हूँ, लेकिन संडे को जा रहा हूँ, फील्ड में ही होता हूँ। कभी भी लक्ष्मण भाई फोन करे संडे को कहाँ पे हो, उसको पूछ लेना कहाँ पे हो गए, वो मालूम है उसको। तो फील्ड में जाके 4 फार्मर के पास जाके आप ये डेमो दे दो। तो क्या काम क्या करेगा, 3 हमारी प्रोडक्ट है, जो मैजिक ही होगा। हम नहीं बोलेंगे, खुद प्रोडक्ट बोलेगी। मान लो कोई भी फसल, अभी मूंगफली की फसल चल रही है, मैंने मेरी एफबी में आप देख लोगे, उसको मैं इसका फोटो भी शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। अभी जो मूंगफली चल रही है, मूंगफली को क्या बोलते हो तेजस भाई, शू क्यों તમે? मगफड़ी ज कहिए, मगफड़ी। ओके, मूंगफली में जो जो ऊपर जो नाइट्रोजन कम हो जाता है, उसको कलर चेंज हो जाता है, तो पीला कलर हो जाता है। उसमें आप ये 3 प्रोडक्ट डालोगे स्प्रे, 3 दिन के बाद उसका कलर चेंज होने लगेगा और 1 वीक में पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये डेमो किया हुआ है, रिजल्ट लिया हुआ है। तो आप इसको आधे में डाल दिया, एक पंप, एक स्प्रे डाल दिया,
तो वो क्या बोलेगा, उसको रिजल्ट देख के बोलेगा ना भैया ये क्या है, वो मेरे को चाहिए, तो तब उसको देना। इस स्प्रे की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर जो अभी सौराष्ट्र में चल रहा है ना तेजस भाई, आपको बोल रहा हूँ, आपका एरिया में स्प्रे ही कर रहे हो अभी, पूरा स्प्रे का ये रिजल्ट है। जयसु भाई ने जो रिजल्ट दिया वो स्प्रे का है, लेकिन अभी उसमें जो पानी में डला होता उससे डबल रिजल्ट होता, हुमिक और एग्री 82 दोनों। तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, उसके पास जाना है, फील्ड में ही जाना पड़ेगा, और उसका पूरा नॉलेज लेना है तो यूट्यूब में भी है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, वहां से नॉलेज लो, यहाँ से लो, और खुद का दिमाग लगाओ, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ना। एग्रो में, कि हम एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो कितना ज्यादा बिजनेस होगा। मान लो कि आप किसी को पेस्ट समझा रहे हो, साबुन समझा रहे हो, टाइम तो इतना ही जाएगा। और एग्री 82 के 5 लीटर समझा रहे हो, टाइम इतना ही जाएगा, पर बिजनेस कितना होगा। मैं तो हिल गया। मैंने एक वीडियो सुना, देखा, DUCD एग्री में हुए, मैंने उसमें ड्रीम बना लिया। तब से पहले तो एग्री में इंटरेस्ट, मैं अभी से मैंने ड्रीम बना लिया कि मैं भी DUCD जाऊंगा, एग्री में ही जाऊंगा। मैंने डाउनलाइन में इतने में एग्री से निकलेंगे और मेरे ग्रुप में भी इतने निकलेंगे, तो मैंने सोच लिया अभी कि एग्री में ही DUCD जाना है। तो कैसे इसको काम करना है, तो मैंने अभी तो फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा अभी मस्ट। घर पे बैठे बैठे बातें करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लास्ट मीटिंग तो तेजस भाई ने जो मीटिंग अरेंज की थी नैनो नाइजर की, उसमें भी जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। पर हम अभी एक एक हमारे ग्रुप में एक एक के मास्टर है, एक एक प्रोडक्ट के मास्टर है, सबको हम ग्रुप में बैठ के एक दूसरे के साथ सीखेंगे तो ज्यादा बिजनेस होगा। अब चलते हैं दूसरी फार्मिंग के पास, कि खेडूत के पास हम जाते हैं, पेस्टिसाइड क्या नुकसान करती है। सिंपली शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो भी एक पेस्टिसाइड है, एक प्लांट में डालते हैं जो 3 पीढ़ी तक चलती है। उसने उसने सीड्स फ्रूट हुआ, उसमें सीड्स निकला, उसने फिर से भी बोया, वो उगा, 3 पीढ़ी तक उसका जो पेस्टिसाइड का इफेक्ट रहता है। हम तो क्या कर रहे हैं, वो छिड़काव किया, सीधा लिया, तो कितना खतरनाक चीज है। तो इस ऑर्गेनिक तरफ जा रहे हैं लोग। अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तो आप जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लोग सामने से पूछेंगे भाई क्या है, तब तो प्रोजेक्ट बताना है, यूज कैसे करना है वो तो मालूम है। तो ये पेस्टिसाइड है और DAP यूरिया, गवर्नमेंट ने उसको उसको समझाना है फार्मर को। यूरिया गवर्नमेंट ने क्यों उसकी कीमत बढ़ाई, तो खुद ही बोलेगा ना। खतरनाक खतरनाक में यूरिया है, DAP से खतरनाक यूरिया है। हाथ में आप लगा के पानी डालना, क्या होता है, ठंडा लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन है ना। बाद में इसके ऊपर जो रह गया ना ऊपर, ये मान लो कि ये है, ये पान है, इसके ऊपर रह गया ना यूरिया, तो इसे नीचे निकल जाएगा। इसके ऊपर रह गया तो नीचे 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 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, खतरनाक कितना केमिकल्स है। अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम किया, क्या किया है उसने, उस पर नीम नीम का कोटिंग लगा दिया है यूरिया यूरिया के ऊपर। इससे कम डिफेक्टिव नुकसान करता कम हो रहा है, लेकिन वो खतरनाक तो है। और यूरिया DAP क्या है, DAP क्या है, जो क्या करता है। DAP का मतलब आपको सबको मालूम होना चाहिए, फार्मर को पूछ लेना, ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन 3 चीज अंदर मिक्स करी हुई है, जो हमें एग्री 82 और हुमिक में मिल रही है, दोनों साथ में देते हैं लिक्विड में। तो हमें उसको कम करवाना है। मैं अभी 50 किलो से 1 एकड़ में 50 किलो डाल रहे थे, और अभी मैं मेरे जो फार्मर है हर साल उसको 10-10 किलो घटा के अभी 25 किलो तक लेके आया हूँ। एक सटक के बंद नहीं करना है, DAP यूरिया बंद नहीं होगा, ऐसे याद के उसे कम करके अभी 2 साल में 0 DAP यूरिया हो जाएगा। तो मान लो, और वो कम हो जाएगा, उसका मतलब है कि कम कर देंगे, लेकिन उसको पैदाइश भी कम नहीं होनी चाहिए ना। जमीन बचना है, पानी बचेगा,
सामने उसमें पैदाइश बढ़नी चाहिए। ये हमारी प्रोडक्ट का कमाल है। लेकिन एक झटके से एक तुरंत नहीं होगा, 2-3 साल के उसको समझाना। एक बार आपको फार्मर को एक बार रिजल्ट दे दिया ना, बाद में वो आपके पास से कभी जाएगा नहीं। दूसरा, उसको कभी भी एमआरपी पे मत दो। क्यों? आपने एमआरपी पे लिया, जो 10 रुपया कम लिया, उसके पास वो कस्टमर चला जाएगा। तो करना क्या है हमें? उसको समझाया, उसको रिजल्ट मिल गया, उसको अभी प्रोडक्ट देनी है, उसका आईडी ले लो। मान लो आप फील्ड में जाते हो, फिर भी हमें उसको मालूम तो नहीं है 10 का प्रोडक्ट कंपनी फ्री दे रही है डीएपी के ऊपर, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो उसको दे दो। लॉन्ग टर्म सोचो। अभी की बात आप बता रहे हो कि अभी मैं अब वहां पे गया, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल जल गया, फिर भी मेरे को नुकसान हो रहा है। नहीं, ये अभी तो नहीं, बिजनेस नहीं चलेगा। उसके हिसाब से उसके पास जाओ, उसको डीएपी में दो, उसको समझाओ। 4 दिन के पास उसको फोन करो, फील्ड में जाने की बात नहीं करो, उसको पूछो भैया उसमें आपने डाल दिया कि नहीं, कैसे डाला। वो फोन करने भूल जाएगा तो अपन को याद करवाना है। मेरे मारे कस्टमर लिस्ट लिखा हुआ है फार्मर का, कौन सी तारीख में किसको क्या दिया, कितना दिया, कितने डाला कि नहीं, उसका मैं नोट रखता हूँ। तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि वो, उसको करना है कि आपने दे दिया, वो तो बेच दिया, वो तो सेल्समैन हुआ ना। हमें फार्मर की केयर करनी है। उसको केयर करने के बाद उसको पूछोगे ना, तो आधा तो आपका इंप्रेस हो जाएगा कि भैया ये तो एक बार लिया तो कितने बार पूछ रहा है। तो आपका कस्टमर परमानेंट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करेगा नहीं, वो आपको बिजनेस करवाना ही नहीं है ना, उसको प्रोडक्ट यूज करवाना है। तो प्रोडक्ट यूज करवाते हो तो उसको केयर करना सीखे। बाद में वो तो फिर भी वो यूज करना उसको आ गया, फिर भी उसको कभी कभी उसकी फार्म में आप जाओ, घूमने जाओ। मैं अभी जो फील्ड में जाता हूँ, फायदा कितना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फील्ड किसके लिए जा रहा हूँ? अपना अपन के बिजनेस के लिए जा रहे हैं ना। लेकिन मेरे को फ्रूट और साग भाजी लेनी नहीं पड़ती। क्यों? जिसके पास जाओ कहीं ना कहीं है, हमारे बगायती है, जामफल है, डाडम है, ड्रैगन फ्रूट है, सब फ्रूट है, उसके पास जा रहे हैं। वो तो ऐसे ही दे देता है, पैसा लेता नहीं है। लेकिन हम ऐसे लेते नहीं है, वो दे देता है तो हम हुमिक दे देते हैं, और एक एग्रेडिट दे देते हैं। लेकिन वो फ्रेश तो मिलता है ना, साग भाजी ऐसे ही फ्रेश मिलता है। लेकिन फील्ड में जाते हो तो देते हैं। हम जाते हैं किस लिए? हमारे बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो करना क्या है, उसको रिलेशन बना के उसको उसको केयर करना है। तो फार्मर के साथ केयर करने के बाद, एक आदमी, मैं गांव में एक ही फार्मर को रिजल्ट देता हूँ, वो मेरा पोस्टमैन बन जाता है। वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बाद में, उसको रिजल्ट दे दिया, वो पूरा गांव में बताएगा कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो उसके आदमी लेने के लिए उसको बोलेगा कहाँ से मिलेगा, भुज से मिलेगा, भुज के एड्रेस उसको दिया हुआ है। वो फोन नंबर ले, बोतल लेके आ रहा है, ये चाहिए, और तो फोटो लगा के आ रहा है। लक्ष्मण भाई के ऑफिस में, हम उसके पास अभी कोई नहीं है तो फिर भी उसके पास लेके नहीं आता है। करना के क्यों? उसको रिजल्ट दे दिया, एक गांव में दिया, उसको पूरा गांव रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो करना क्या है, उसको रिजल्ट बताना है और ईमानदारी से बताना है। हम उसके पास जा रहे हैं, कुछ बेच नहीं जा रहे हैं। और इसके अलावा फार्मर की अदर नॉलेज अपन को लेनी पड़ेगी। कौन सी अदर? दूसरी फार्मर की हमारी प्रोडक्ट नहीं है उसका, लेकिन उसको गवर्नमेंट में कुछ भी सब्सिडी आ रही है, कुछ फार्मर के पैसा आ रहा है, उसकी आपको जरूरत है, आपको मालूम है, तो वो उसको हेल्प करनी है। मैंने ये फार्मर का, मेरा फार्मर मेरे को पूछा कि बोलते हैं ना कि आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कोई भी होता है किसी का। मान लो कि मेरा कंसल्टेंट तेजस भाई है, तो कुछ भी काम हो तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तेजस भाई को कांटेक्ट करूंगा ना। यस। तो ऐसे हमारे हम एग्री फार्मर के कंसल्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं, उसको दूसरी हमारे जरूरत, हमें मालूम है, इसको हेल्प करो, कहाँ बेचना है, कहाँ लाना है। मैंने अभी ड्रैगन फ्रूट और हमारे यहाँ कच्छ में एप्पल एप्पल की फार्मिंग शुरू हो गई, और एप्पल हुआ है। मान लो किसी को उसको विश्वास भी नहीं आ रहा कि इतनी 45 डिग्री में कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। उसकी सिस्टम अलग है, उसमें टिश्यू कल्चर बना के उसका प्लांट ऐसा बनाया है कि 45 डिग्री तक वो हो सकता है। वो भी हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, फार्मिंग किया हुआ है उसने। उसने एप्पल लगा है और उसमें खिलाया भी।
जो लाल कलर मीठा नहीं होता वो खटमीठा होता है, लेकिन एप्पल ही एप्पल है। ऐसी ऐसी नई नई चीज फार्मर को बतानी है, अपन को कहाँ से ढूंढ कर उसको बताना है। वो करे ना करे इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अभी डाला था थोड़े दिन पहले वो स्टेविया की फार्मिंग एमपी में और दक्षिण भारत में होती है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकती है। उसकी नॉलेज मैंने ढूंढी, गूगल में निकाला, एमपी से उसने लिखा था उसका कॉल नंबर, उसको बोला। ऐसी ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन आपको जो फार्मर को दोगे तो ही आपको भरोसा करेगा। फुल करेगा नहीं करेगा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमने उसको डेवलप करवाना नहीं है, अपन को जो भी हमारी नॉलेज है उसको बताना है। तो ऐसी बात करना है। और आज हम मान लें देखते हैं कि हमारा जो एग्री का प्रोडक्ट है, बाद में आपको सेशन रखेंगे किसी को बताना है। आज 2 प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूं, जो 2 प्रोडक्ट के बाद उसका आपको डेमो दिखाना है, 3 डेमो दिखाना है, वो हमारी प्रोडक्ट का क्या मैजिक होता है। तो 2 प्रोडक्ट, अभी कौन सी प्रोडक्ट जरूरत है सबको मालूम है। ज्यादा बारिश हुए, पानी भरा हुआ है, सब जगह पे नुकसान हो रहा है, पानी से नुकसान हो रहा है। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट कैसे उसको सपोर्ट करता है, उसमें कौन सी है। पहली तो हमारी है, कौन सी होगी, आप सबको मालूम है, नैनो प्रोटेक्ट, जिन्हें फंगीसाइड थी, जिसने 3 सिस्टम उसमें है। प्रोटेक्ट के अंदर 3 सिस्टम से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। एक मिनट दिनेश भाई। ओके। दिनेश, अभी हमारा सेशन ये पूरा होगा, आप फिर से उसको हाँ। रिज्वाइंट करेंगे। अभी 1 या 2 मिनट में सेशन पूरा होने वाला है। जैसे ही ये पूरा हो, ओके। आप वापस वही लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वापस ओके। ये सेशन में आ जाएंगे और हम आगे का डेमो देखेंगे। अभी 2 मिनट के बाद ये ठीक। होगा। यस, ठीक है, बाद में कितना कंटिन्यू साहब। ओके, बाद में कितना टाइम है बाद में? उसके बाद 40 मिनट रहेगा। ओके 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 ओके। तो पहला हमारा प्रोटेक्ट है, उसको 3 सोइल में करना है, और दूसरा बीज सीड्स के साथ करना है उसका ट्रीटमेंट, और तीसरा है स्प्रे के साथ। 3 तरीके से उसका प्रोटेक्ट हो रहा है, प्रोटेक्ट का यूज हो रहा है। उसने जिसने मेरे फार्मर, अभी मैंने जो यूज करवाया है वो फार्मर, पानी भरा हुआ है फिर भी फंगस की कम उसमें आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो उसने तीनों ट्रीटमेंट दी हुई है। सोइल में दिया था, कितना देना है कैसे देना है, उसके बाद में उसको तो टाइम पूरी प्रोडक्ट नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरे पास है जितनी है। फंगस में क्या है, अभी कौन सी में फंगस ज्यादा आएगी, मूंगफली आएगी, मूंगफली में आ जाएगी, कपास में भी आ गई है। जिसने उसने सोइल प्रोटेक्शन और सीड प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट दी हुई है, उसने फंगस कम है, कम है नहीं, कम है, लेकिन उसको फिर से स्प्रे करके उसको कंट्रोल हो सकती है। दोनों फंगस के 2 आइटम है, 2 प्रकार होते हैं, आइटम के मतलब 2 प्रकार होते हैं। एक टचिंग हो जाती है, दूसरी जगह हो तो वापस चली जाती है, दूसरी जमीन से निकलती है फंगस। और एक बार जो हो गई फंगस, उसका कंट्रोल करना हमारी प्रोडक्ट का जल्दी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले अभी हो गया है तो क्या करना है, तो अभी आपको पेस्टिसाइड को उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसका उसके सिवा कोई उसको चारा नहीं है। तो हमें अभी प्रोडक्ट के यूज कैसे करना, स्प्रे में कर सकते हैं हम। स्प्रे में 15 लीटर पानी में 40 ग्राम प्रोटेक्ट डाल के और 5 ml अथवा 10 ml एग्री 82 डाल के उसको स्प्रे करवाना है। ऊपर पूरा स्प्रे करवाना है, ऊपर की जो फंगस है उसको निकल जाएगी। और पानी तो हम दे सकते नहीं, तो पानी में जो दे सकते हैं, पानी जो मान लो कि 2-3-4 दिन के बाद जो धूप निकल जावे, पानी नीचे सूख जावे, तो उसको पानी देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि सौराष्ट्र में जाते हैं तो पानी तो है नहीं, तो बारिश के ऊपर आधारित है। उसमें क्या करना, ड्रिचिंग करवाना पड़ेगा।